आज हम बहुत स्पेशल डे पे मिल रहे हैं एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज जॉइनिंग दिस मीटिंग विद अस। क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग सुबह झंडा फहरा के अब अपने अपने काम कर रहे होंगे, बट आपने टाइम निकाला है इस मीटिंग में आने के लिए, इस सेशन में आने के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू कि इस सेशन से जो आप नॉलेज लेके जाएंगे वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि सीकेडी से डील कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। माय नेम इज हर्षित भाटिया, आई एम अ पार्ट ऑफ द किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन and I welcome you all on this webinar, which is about living well with kidney disease in collaboration with Zydus Life Sciences. So आज Kidney Warriors Foundation ने Zydus Life Sciences के साथ एक collaboration किया है to bring to you some of the best nephrologists in our country, and we are blessed to have Dr. R.K. Sharma with us and Dr. Shyam Bansal with us. I'll quickly give a introduction for both these doctors, and I would say हमारे पास आज देश के जो दिग्गज नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ हैं आज, और इनकी इंट्रोडक्शन में जो कहा जाए वो कम है, बट आई विल क्विकली गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर बोथ द डॉक्टर्स. So first of all, welcome Dr. R.K. Sharma. We have Dr. Rajkumar Sharma, who is the head of department nephrology at Medanta, Lucknow. डॉक्टर शर्मा फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं कई सालों के लिए SGPGI लखनऊ से, एंड ही इज ऑल्सो द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. डॉक्टर शर्मा ने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी लीड किए हैं, इंक्लूडिंग बीइंग अ को चेयरमैन ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ किडनी डिजीजेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अलावा हम बात करें अगर उनके रिसर्च पेपर्स की, तो डॉक्टर शर्मा हैज मोर देन 353 research papers published in national and international journals. इसके अलावा they have authored chapters in more than 25 books, and he is the emeritus editor of the Indian Journal of Transplantation and Indian Journal of Nephrology. And let me tell you, this introduction has been shortened. He has much more accomplishments to his name, and we are blessed to have him here with us. Thank you, Dr. Sharma, for joining us. Next up, we have Dr. Shyam Bihari Bansal, who is the Senior Director and HOD of Medanta's Institute of Nephrology and Kidney Transplant. डॉक्टर बंसल ने जो नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया था इन द मेडिकल कॉलेज ग्वालियर इन 2006. Then he moved to Fortis Hospital, and in 2019 he built the nephrology department in Medanta हॉस्पिटल गुड़गांव. एंड हम सबको पता है कि कितने इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं ये हमारी कंट्री के लिए, मेदांता हॉस्पिटल्स, बोथ लखनऊ एंड गुरुग्राम. डॉक्टर श्याम is also the coordinator of the DNB teaching program in nephrology and is actively involved in the training of new nephrology doctors. तो एक हेरिटेज भी छोड़ के जा रहे हैं वो अपना काम के साथ साथ, कि हमारी कंट्री को और नए डॉक्टर्स मिले जो कि ट्रेंड हैं इन नई टेक्निक्स में. Talking of all the new techniques, so Dr. Bansal has been involved in more than 2,000 kidney transplants, and he has had a lot of research published in his name, and some of his notable research includes kidney transplantation in HIV positive patients and series of ABO incompatible kidney transplants, and he has also successfully performed, he and his team, the steroid free kidney transplant in India. So अगर आपको ये इंट्रोडक्शन से पता चल रहा हो, so these two doctors are very prominent for our country, and I wholeheartedly thank both the doctors for joining us today. So thank you, Dr. Shyam, thank you, Dr. R.K. Sharma, and we would like to start today's presentation with Dr. Shyam Bansal. Today we are discussing anemia in CKD. जो किडनी पेशेंट्स हैं, चाहे वो आप डायलिसिस पे हैं चाहे आप ट्रांसप्लांट में हैं, अनीमिया एक ऐसा इशू है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, येट इट इज ऑफन इग्नोर्ड बाय पेशेंट्स, या उनको इतना पता नहीं होता उसके बारे में. सो आज का हमारा सेशन रहेगा उसके बारे में. विल डिस्कस सम प्रेजेंटेशंस बाय द डॉक्टर्स, एंड राइट आफ्टर दैट विल हैव अ Q&A सेक्शन. तो फेसबुक पे आप कहीं पे भी अगर देख रहे हैं अपने मैसेजेस ड्रॉप करें, एंड आई विल बी हैप्पी टू आस्क योर क्वेश्चंस टू आवर एस्टीम्ड doctors today. Dr. Shyam, over to you. Thank you, Arshit, for a nice introduction and coordinating this program. And I am so happy to see that Arshit, you might be knowing that he has been transplanted in Medanta, Gurgaon, and obviously you can see he is doing very well. And I wish him all the best. So again, a very happy Independence Day to all of you. And we are discussing today about anemia in chronic kidney disease. So as you know, the anemia, all of you who have been patient with CKD or in your family, if there are people or in your friend circle who have chronic kidney disease,
anemia is a very common in these patients. So as you can see in this diagram that in anemia, the red blood cells that it reduces. So what is anemia? If we define it, there is a significant amount of reduction in circulating red cell mass or their hemoglobin content, and which also depend on the age and sex, and which causes various problems, including but not limited to decrease in the oxygen carrying capacity of blood. So WHO defines anemia means hemoglobin less than 13 gram per DL in men and less than 12 in women. So this is the definition of anemia, whether it's a patient with CKD or not with patient with without patient of CKD. So as I said that in various age group, definition of anemia differs. But less than 6 months to 5 years, it is less than 11, then 5 to 11 year 11.5, and more than 12 year 12 to 14 year 12, and women more than 15 year less than 12, and men more than 15 year. Anemia is defined as if the hemoglobin is less than 13 gram per deciliter. So we should know what can cause anemia. So this is about the general causes of anemia, and this is not limited only to chronic kidney disease. So if we see in the general population, there could be various causes of anemia, like increased loss of blood can occur in any sort of bleeding, especially the GI gastrointestinal bleeding, increased destruction of the red blood cell because of the some autoimmune process in which there is a hemolysis, lysis of blood occurs, or because of the drug-induced hemolysis, decreased production of the red blood cell because of the bone marrow failure, which occurs in patients who have some bone marrow diseases and inability of the bone marrow to produce the RBCs, or disruption of the raw material, which is involved in erythropoiesis, like if there is a deficiency of iron or other nutritional deficiency, which is a very common in India and other developing countries. And then in CKD, there is a erythropoietin deficiency. So that we will discuss more in this presentation. And then there could be anemia because of other chronic diseases and cancer. So this is in overall causes of anemia in general population. In CKD, the previously when the erythropoietin was not discovered, it was very common, and a lot of people, they required blood transfusion. Because once they went on the hemodialysis, the erythropoietin production, which is done by the kidney and which is important for formation of the RBC, that reduces significantly, and the patient required multiple blood transfusion. Also, this discovery of erythropoietin was in the late 80s, was one of the most important breakthrough in the management of CKD-related anemia, and which has almost eliminated the need of blood transfusion, except in patients who are not able to take or who do not take this erythropoietin. So anemia can cause many problems, like you will feel tired, you will have less energy, your appetite may go down, there may be problem in sleeping, you can feel dizziness, thinking, your mental cognitive abilities are also affected if you have one has severe anemia. You can have rapid heartbeat, that is called tachycardia, because of the heart has to work more, and there is more there's a rapid heartbeat. And then obviously then there are psychological symptoms. You can have breathlessness because of severe anemia, and one would look pale. So coming to why do people with kidney disease, we already discussed that people with kidney disease, they have high chances of development of anemia because kidney produce a hormone which is called erythropoietin, and this erythropoietin hormones is very important for making red blood cells. How it does it? Uh, the normal kidney function, whenever there's a healthy kidney send this hormone to bone marrow, and bone marrow then produces red blood cells.
And these red blood cells carry oxygen through the bloodstream, and which is made available to the various organs throughout the body. As the kidney function goes down, the production of the erythropoietin reduces. As a result of that, there are fewer red blood cells are produced, and which causes anemia. And the oxygen carrying capacity of the blood is reduced, and which can lead to many complications, which we will talk about. But one should remember that the erythropoietin deficiency is not the only cause of anemia in chronic kidney disease. There could be other causes which are also equally important. See, one of the most important cause of the anemia in patient with chronic kidney disease is iron deficiency. So there is a requirement of the iron and other nutrition for formation of RBCs. And this iron deficiency, if the intake of the iron is inadequate, then even if there is a erythropoietin in the body, there would not be sufficient RBC formation. So this is one of the important causes. Then there is of course, we have seen erythropoietin deficiency. Then there could be blood loss. Sometimes these people who are on dialysis, they lose blood during the dialysis, or there can be bleeding somewhere else, as we discussed previously, that if the like bleeding in other patient with CKD could also have bleeding. Previously, we used to use aluminum as a phosphate binder in patient with CKD, but nowadays this is less uncommon cause of anemia. Then the inflammation. Inflammations is very common in patient with CKD. And if there is an inflammation, which is actually we see by various markers, if there is an inflammation, then the response of the body or the bone marrow to the EPO and the other things, it is reduced, and there is a anemia. So even if you have erythropoietin, it can cause the resistance to the erythropoietin and other things, and there is a functional iron deficiency. If there is an infection, so in condition of the infection, if somebody has fever or the other severe infection, again the RBC formation is reduced. Other nutrition deficiency, folate and vitamin B12, which is also common in country like India, and it's a common cause of iron deficiency. Some drugs like aspirin or AC inhibitors like enalapril or telmisartan, or these drugs can also cause anemia by various mechanisms. There could be bone marrow suppression sometime in patient with severe kidney disease and uremia, and for that one need to do the dialysis if the patient has severe kidney function. Otherwise, they would not respond to these drugs only. So these are the some other important causes. So erythropoietin deficiency is obviously one of the more important cause, but one should also rule out and see for the other causes of iron deficiency in patient with CKD. So how common is the anemia in patient with CKD? So if you can see initial stage 1, 2, and 3, it is about 15 to 20% patient would have anemia. But once you go CKD stage 4, CKD stage 4 means the GFR, the glomerular filtration rate, goes below 30 ml. So in that, about 60 to 70% patient would have anemia, and in CKD stage 5, almost all 70 to 80% patient, they would have anemia. So anemia is very common in CKD, and in advanced stages, the prevalence is up to 60, 70 to 80%. What is the problems with the anemia? Anemia, if you have one has anemia, means hemoglobin of less than 10, then it is associated with increased risk of death as well as increased risk of hospital admission. This is more so when the hemoglobin is less than 10, not in the patient who have hemoglobin between 10 to 12. That is why new guidelines, which Dr. Sharma will discuss about, they tell that if you have hemoglobin more than 10, between 10 to 12, you usually do not give erythropoietin in these patients, because there is no additional advantage of giving erythropoietin in these patients. So what are the consequences of anemia in patient with chronic kidney disease? One that we discussed, that there is a reduced oxygen delivery to tissues, decrease in hemoglobin,
And as a result of that, the heart has to work more, increase in cardiac output, increase in the heart rate. And because of the heart has to work more, there could be progressive cardiac damage. Thus, anemia can cause the progressive cardiac damage. And there is some evidence that it can also lead to progressive kidney damage, increased mortality risk, which we have seen. Quality of life, this is a very important parameter, and this has been seen in patient with anemia, that quality of life is reduced, like there's increased fatigue, decreased exercise capacity, reduced cognitive function, mental function. And there is a left, because of the heart has to work more, there is an increased left ventricular hypertrophy in patient with CKD, although it has multiple causes. Anemia is one of the cause, hypertension is other cause of the LVH, but anemia is also a contributory factor to it. So a very important, why we are discussing it again and again, is that anemia is an important contributor to the heart diseases. So if you have chronic kidney disease and if you have anemia, then there are increased chances of cardiovascular disease. This cardiac disease again in turn increase the mortality and also increase the progression of chronic kidney disease. So cardiac mortality is very high in patient with chronic kidney disease, and most of the patient who with CKD who die, they die because of the cardiac disease. So there are two important causes of death in patient with chronic kidney disease. One is the cardiovascular disease and another is infection. So and one of the contributor to the cardiovascular disease is anemia. And this left ventricular hypertrophy, which I just described, is very common in patient with CKD, and there is a strong correlation with anemia. So we already discussed that anemia increases the coronary heart disease risk in patients with chronic kidney disease, and as the GFR goes low, there is a higher and higher chances of probability of coronary heart disease in these patients, and they have 5 to 10 times more likely to die from cardiovascular disease. So it's so sometimes patient with CKD, they only focus on kidney disease, and we tell our patient that you should always, once in a while, once in a year or two, all do your cardiac evaluation, because cardiac cause is a significant cause of the cardiac disease, is a significant cause of death in patient with the disease. So even those patients who do not have symptom, they should do their routine cardiac evaluation if they have chronic kidney disease. What test should we do in these patients to evaluate anemia? So this is clear from the initial slide that we should do the hemoglobin concentration in all these patients. Then there are some red blood cell indices like MCV and all that, which are part of the complete blood count if you do hemogram or blood count. Then the reticulocyte count to see what is the responsiveness of the bone marrow. Then iron store. This is a very, very important part of the anemia workup in all the patients. So any patient with anemia and CKD, they should be seen about their iron stores, ferritin level, their transferrin saturation, serum iron level. That must be seen, because unless you correct the iron deficiency, you are not going to correct the anemia in these patients. CRP is a marker of inflammation. So if you have inflammation inside the body, then there would be less responsiveness to the erythropoietin. So that should be seen in the patient, especially those who are not responding to erythropoietin. Then additional tests, as I mentioned, that other nutrition like vitamin B12, because it is mainly in the non-vegetarian food, and many of our countrymen, they are vegetarian. So that should be seen and corrected as a cause of anemia. Then other causes will depend. This patient with CKD can have other problems like general population. If there is a hemolysis because of some drugs or some other disease, then if there is some cancer or malignancy, so these are the tests for that, bone marrow evaluation, and if the patient is having any occult bleeding from the gastrointestinal tract. So these are the other things which should be seen
as a part of the anemia workup in patient with chronic kidney disease. So this is a multiple tests are required sometime, but not in all patients. It's important. These are probably the tests which are required in all patients, and then these are the tests which are required in patients who do not have these problems. These things are iron, as I mentioned, is very, very important in patient with CKD, and the CKD patient at greater risk of the iron deficiency because of the blood loss, tests, dialysis, and other things. And it should be adequately up to the tune of 60 to 70%, as you can see in this slide. And management of the iron deficiency, I'm sure Dr. Sharma will talk about it, is very important for the anemia treatment before the erythropoietin in patient with CKD. Why you should treat anemia? Because it improves quality of life, increase exercise tolerance, improve cognitive function, and some evidence to suggest that it can protect against cardiovascular diseases by reducing the left ventricular hypertrophy, improving the cardiovascular output, and reducing symptoms which are related to the cardiovascular disease and mortality. Thank you. How often you should check the anemia? It depends on the stage. Usually, if patient is stage 3 and beyond, then we check at least once in 3 to 6 months. And then if in the advanced stages, you should check it more often, maybe every month or 2 months. If CKD stage 4 or 5, every time the patient comes for a follow-up, one need to check his hemoglobin level to know his status. Thank you. Thanks to all of you for listening patiently. Thanks. थैंक यू डॉक्टर श्याम बंसल, दिस वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी काफी हेल्पफुल लगा होगा ये. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बट हम वो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं. तो हम लोगों को डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप फेसबुक पे ड्रॉप करते रहिए. हम प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक Q&A सेशन रखेंगे जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. बट फॉर नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर R.K. शर्मा टू प्रेजेंट हिज प्रेजेंटेशन, जिसमें we will go more in depth about anemia in CKD and find some, latest techniques to resolve it in patients. Dr. Sharma, over to you. Yeah, thank you. Can you see my slides? Haan ji, we can see the presentation. Okay. So, good afternoon, ladies and gentlemen. मैं किडनी वॉरियर्स हर्षित को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एनीमिया मैनेजमेंट के बारे में जो डिस्कशन रखा है. किडनी की बीमारियां जैसे हम जानते हैं एक महामारी की तरह फैल रही हैं और 10 में से एक व्यक्ति को किडनी की बीमारी के अर्ली बीमारी के लक्षण होते हैं. तो हम आज किडनी के बीमारी के रिलेटेड जो एनीमिया होता है, CKD एनीमिया, जिसका डिस्कशन डॉक्टर बंसल ने उसके कारण और क्यों होता है उसका डिटेल प्रेजेंटेशन किया, और मैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में और नई ट्रीटमेंट जो अभी उपलब्ध हो रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा. एनीमिया एक किडनी की बीमारी का बहुत ही प्रमुख लक्षण है. जैसा आपने सुना कि इसका एक मुख्य कारण एक हार्मोन जो किडनी बनाती है एरिथ्रोपोइटिन, उसकी कमी के कारण ये हमारे पेशेंट्स में जिनको किडनी की बीमारी है और किडनी फंक्शन कम हो गया है, उनके अंदर एनीमिया, खून की कमी हो जाती है. तो जो ट्रीटमेंट का मेन गोल है कि हम किस तरह से खून की इस कमी में सुधार करें एंड हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करें टू अ लेवल दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू.
जो रेंज या टारगेट है हीमोग्लोबिन का जो हम अचीव करना चाहते हैं वो इंडिविजुअलाइज होता है। अलग अलग पेशेंट्स में हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन को टारगेट करते हैं और ये आपके जो डॉक्टर हैं जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट लेवल फॉर यू। और द गोल इज दैट जो ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है वो हम उसका प्रयोग करें, उसको यूज करें उस रेंज तक हीमोग्लोबिन को पहुंचाने में और उस रेंज में रखने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट गोल इज यदि हीमोग्लोबिन हमारा टारगेट रेंज में रहेगा जो कि जनरली 10 और 11 हीमोग्लोबिन की रेंज होती है, पर डिफरेंट पेशेंट्स में ये इंडिविजुअलाइज रहेगी, तो हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पेशेंट जिनकी किडनी खराब है या वो डायलिसिस में है, अल्टीमेटली वो किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं और इन पेशेंट्स में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहते क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से उनको किडनी ट्रांसप्लांट करने में, गुर्दा प्रत्यारोपण करने में एक दुविधा आती है क्योंकि जो किडनी लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में इन पेशेंट्स में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। एनीमिया ट्रीटमेंट जो किडनी के मरीजों में होता है जिसमें किडनी फंक्शन कम हो गया है, उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण एरिथ्रोपोइटिन जो कि इंजेक्शन से दिया जाता है स्किन के नीचे, जिसको हम सबकुटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। जैसे कि डायबिटिक्स, आप में से कुछ यदि डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इंसुलिन भी सबकुटेनियस लगाई जाती है और उस एरिथ्रोपोइटिन को हम नस में भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस जिसको बोलते हैं। तो जो पेशेंट डायलिसिस ले रहे होते हैं उनमें डायलिसिस के दौरान क्योंकि ऑलरेडी इंट्रावीनस एक्सेस उपलब्ध होती है तो उनको इंट्रावीनस एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन लगाते हैं। उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आयरन सप्लीमेंटेशन, क्योंकि यदि आयरन की कमी हमारे अंदर है तो हमारा एनीमिया करेक्शन एरिथ्रोपोइटिन से उतना नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। जो सबसे जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर बंसल ने भी जिक्र किया, जो टेस्ट पेशेंट्स में हम करवाते हैं किडनी जिनकी फंक्शन कम है और एनीमिया है, उसमें आयरन का स्टेटस देखते हैं कि आयरन की कमी तो नहीं है। और आयरन की जरूरत जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो शरीर में, उनके बनाने में एरिथ्रोपोइटिन जैसे बनाती है, उसको आयरन, उसमें आयरन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आयरन को आप गोली की तरह या ओरल पिल्स की तरह दे सकते हैं और इसको हम इंजेक्शन की तरह भी दे सकते हैं। तो ऑप्टिमल एनीमिया ट्रीटमेंट में जैसा मैंने जिक्र किया, आयरन स्टेटस का देखना बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आयरन की कमी है तो पहले उसको आयरन की कमी को करेक्ट किया जाता है और आयरन की डोज जो कि लोएस्ट रिक्वायरमेंट डोज है उसको पेशेंट को देते हैं। इंट्रावीनस भी ये दी जा सकती है, और लेकिन बहुत जरूरी है कि हम आयरन की डोज उतनी ना दें जिससे कि शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाए, बिकॉज आयरन यदि हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होता है। तो हम उतना ही आयरन देते हैं जिससे कि आयरन की कमी करेक्ट हो जाए और उसके साथ
एरिथ्रोपोइटिन का प्रयोग करके हीमोग्लोबिन को जो टारगेट रेंज है उसमें लाना बहुत सरल संभव हो जाता है। क्योंकि यदि आयरन की कमी होगी तो एरिथ्रोपोइटिन से रिस्पॉन्स भी सब ऑप्टिमल होती है। आपको ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन का यूज करना पड़ेगा उसी टारगेट हीमोग्लोबिन तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा यदि कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस ना हो, उससे भी आयरन की कमी भी हो जाती है और साथ में एरिथ्रोपोइटिन से रिस्पॉन्स भी पूरी नहीं आती है। इसको हम एरिथ्रोपोइटिन हाइपो रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन, किडनी की जो बीमारी है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। हमारे शरीर के अंदर किडनी की फंक्शन जब कम हो जाता है और उसके साथ में जब हम डायलिसिस का ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इसीलिए आपने डॉक्टर बंसल ने जैसे बताया कि CRP एक जो टेस्ट है वो ये बताता है कि इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है या नहीं है। यदि इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हो वो कई बार इन्फेक्शंस के कारण भी होता है जो कि बहुत ऑब्वियस ना हो। जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जो कि अभी डायग्नोज नहीं हो पा रही है, ऑकल्ट इन्फेक्शन कहीं पे हो, उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और एनीमिया होता है जो कि एरिथ्रोपोइटिन से उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये जरूरी है कि आयरन और एरिथ्रोपोइटिन का प्रयोग हम ऑप्टिमली करें और इतना ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन का प्रयोग न करें कि हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ जाए। वो भी किडनी के जो पेशेंट हैं उनके लिए हानिकारक होता है। स्पेशली उनको उनके हार्ट के लिए हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा हो तो वो हानिकारक है। इसलिए किडनी के पेशेंट्स में हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि 12 या 13 से ज्यादा या 13-14 है वो अचीव नहीं करना चाहते हैं। तो बेसिकली IV आयरन और एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी इन अ बैलेंस्ड वे हम यूज करते हैं जिससे कि टारगेट हीमोग्लोबिन को अचीव किया जा सके। ये कुछ ओरल आयरन की प्रिपरेशंस हैं जो कि यूज की जाती हैं। ओरल आयरन कुछ प्रिपरेशंस ज्यादा बायो अवेलेबल रहती है, उनसे आयरन बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन सा आयरन, ओरल आयरन का प्रयोग किया जाए। लेकिन पेशेंट जिनको किडनी फंक्शन कम है वो कई बार ओरल आयरन को टॉलरेट ठीक से कर नहीं पाते हैं और पूरी डोज नहीं लेते हैं। कॉम्प्लायंस भी पूरी नहीं हो पाती है। इंट्रावीनस आयरन का फायदा ये है कि उसमें ये GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या पेट के जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है आयरन लेने से, वो सब नहीं होता है। और ये हम स्पेशली जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं या इवन जो डायलिसिस पे नहीं भी हैं उनको हम आयरन का स्टेटस देख करके बीच में जब आयरन स्टेटस थोड़ा सा कम हो जाता है तो उनको आयरन IV आयरन सप्लीमेंट कर देते हैं और उससे आयरन की मात्रा ऑप्टिमम रहती है और एरिथ्रोपोइटिन की रिस्पॉन्स भी अच्छी तरह से होती है। ज्यादा एक्सेसिव एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओरल आयरन का मैंने जिक्र किया, ये बहुत कॉमन सप्लीमेंट है जो कि पेशेंट्स स्पेशली जिनको एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हैं और या जिनमें एरिथ्रोपोइटिन देने की जरूरत नहीं है लेकिन आयरन की कमी है उसमें ओरल आयरन हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत महंगा नहीं होता और इसमें स्पेशली जो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं हैं उनमें नस के अंदर कुछ ट्रीटमेंट या कुछ इंजेक्शन देने की
जो कि IV आयरन में हमें नस के अंदर देना, और इन्फ्यूजन के तौर पे आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे में आयरन का इन्फ्यूजन देते हैं। वो ओरल आयरन में वो करने की आवश्यकता नहीं होती है। और एक पॉसिबल, कई बार IV आयरन जब देते हैं तो रिएक्शन भी हो सकता है, इसलिए जब आयरन IV देते हैं तो उसको मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही डे केयर में देते हैं, और कोई रिएक्शन ना हो उसका भी हम ध्यान रखते हैं। वो सब ओरल आयरन में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओरल आयरन की डिसएडवांटेज, इसका मैंने जिक्र किया कि वो हमारे पेट के अंदर, हमारी स्टमक में और आंतों में वो कई बार साइड इफेक्ट्स उसके होते हैं, जिसको कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटॉलरेंस कह सकते हैं। जब हम ज्यादा ओरल आयरन, जिसकी कई बार पेशेंट को जरूरत होती है, तो ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। और इस साइड इफेक्ट के कारण कई बार पेशेंट इनको लेना छोड़ देते हैं, तो उनका आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की जो कमी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। और दूसरी चीज है कि कई बार ओरल आयरन से उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और पेशेंट ले तो रहा है लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं हो पाती है, उसको एक तरह से टॉलरेंस हो जाती है, एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑप्टिमल नहीं हो पाता है। कई पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, लेकिन उनको फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन ओवरलोड भी नहीं है और आयरन की डेफिशिएंसी टेस्ट में नहीं आ रही है, तो उन पेशेंट्स में यदि हम IV आयरन दें और उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन दें, तो एरिथ्रोपोइटिन की रिस्पॉन्स बेटर देखी जाती है। तो इसको फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइटिन देने से एक तरह से ऑब्वियस हो जाती है। तो जैसा मैंने जिक्र किया, इंट्रावीनस आयरन थेरेपी, पेरेंट्रल आयरन थेरेपी का मतलब है कि हम इंजेक्शन से आयरन दे रहे हैं। वो एक मोस्टली इंट्रावीनस देते हैं नस के अंदर। कुछ आयरन पहले इंट्रामस्कुलर भी दिए संभव होते थे, लेकिन आजकल मोस्टली इंट्रामस्कुलर आयरन को तो अवॉइड करते हैं। जो आयरन की इंट्रावीनस आयरन है, उससे एरिथ्रोपोइटिन की जो डोज है वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इस तरह से कॉस्ट, पेशेंट का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कम हो जाती है। ये एनीमिया करेक्शन बेटर होता है, और इसके साथ में जो हार्ट का एस्पेक्ट है, क्योंकि पेशेंट्स जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उनको हार्ट डिसीज काफी मात्रा में, उनको काफी परसेंटेज ऑफ दीज पेशेंट्स हैव हार्ट डिसीज। तो दैट करेक्शन ऑफ एनीमिया एंड करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज हार्ट डिसीज को भी एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट डिसीज के अगेंस्ट। आयरन के अलावा विटामिन B12 की भी कमी हो सकती है, फोलिक एसिड भी कमी हो सकती है, क्योंकि कुछ ये जो विटामिन्स हैं वो डायलिसिस के अंदर बाहर निकल जाते हैं। तो इनका भी टेस्ट करके यदि इनमें कमी हो तो वो भी इंजेक्शन से हम दे सकते हैं। और आयरन करेक्शन बेटर होने से, आयरन स्टेटस बेटर होने से और एनीमिया करेक्ट होने से जो पेशेंट की हार्ट फेलियर भी बेटर हो जाता है, और फिजिकल कैपेसिटी, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बेटर हो जाती है। IV आयरन जब हम दे रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि कुछ पेशेंट्स को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो काफी, आजकल जो आयरन की प्रिपरेशन है वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, वो बहुत सेफ हैं, और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत कम होते हैं। IV आयरन
कई बार फॉस्फेट लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो इसलिए यदि हम रेगुलर आईवी आयरन की जरूरत पड़ रही है और दे रहे हैं तो फॉस्फेट लेवल्स भी हमको देख लेने चाहिए। और इसके साथ में यदि कोई इन्फेक्शन, ऑकल्ट इन्फेक्शन है तो वो आईवी आयरन से एक तरह से ऑब्वियस हो सकता है, बढ़ सकता है। इसीलिए सीआरपी मेजरमेंट काफी हेल्पफुल रहता है। यदि सीआरपी रेज्ड है तो एक तो बताता है कि इन्फ्लेमेशन है, और दूसरा कोई ऑकल्ट इन्फेक्शन, कोई ऐसा इन्फेक्शन जो कि दबा हुआ है और बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, वो उसको भी हमें देखना चाहिए। आयरन ओवरलोड, ज्यादा आयरन देना भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो 1986 के अंदर उसने एनीमिया मैनेजमेंट को एकदम रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मैं जब 1989 में अमेरिका में था तो एरिथ्रोपोइटिन का उपयोग बहुत बढ़ रहा था, और उस समय लोगों को ये आशा थी, जो बहुत हद तक पूरी हुई है, कि it is a revolutionary treatment and intervention which will make the lifestyle of patients जिनको किडनी फेलियर है, और वो संभव हो पाया है। उस समय पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते थे, हीमोग्लोबिन कम होते थे, बहुत कमजोर होते थे, पीलापन होता था, एक्सरसाइज की टॉलरेंस नहीं थी। लेकिन वो सब बहुत हद तक एरिथ्रोपोइटिन के उपयोग से, जो कि ऑलमोस्ट आपने देखा 60 to 80% पेशेंट्स जिनको एनीमिया है, उसमें एनीमिया करेक्शन एक रेगुलर ट्रीटमेंट का पार्ट है, और ये चीजें बहुत हद तक करेक्ट हो जाती हैं। हमारे पेशेंट जो डायलिसिस में भी हैं, उनको अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, और साथ में इससे आयरन ओवरलोड प्रिवेंट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना होने से ट्रांसप्लांटेशन या किडनी मैचिंग करना इजियर है, नहीं तो मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन देने से एक मैच्ड किडनी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रांसफ्यूजन जो है वो इन्फेक्शन को भी दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आजकल बहुत सेफ है, उनको टेस्टेड होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे इन्फेक्शन जो हैं अभी जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, जो पता नहीं है, वो भी नए नए इन्फेक्शन डेवलप हो सकते हैं और ट्रांसफ्यूजन से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। यहाँ पे ये कार्टून में आप देख रहे हैं कि एनीमिया का जो मुख्य कारण है कि जब किडनी फंक्शन कम हो जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, किडनी एक्चुअली जस्ट फिल्टर नहीं है, किडनी इज अ ग्रंथि आल्सो, एंडोक्राइन ऑर्गन, और ये काफी हार्मोन्स को बनाती है जो खून, बोन्स, हमारे शरीर की संरचना, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो जाती है किडनी फंक्शन कम होने से, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन का ट्रीटमेंट सबकुटेनियस और इंट्रावेनस दिया जाता है। और वो यदि आयरन और दूसरे विटामिन हमारे शरीर में उपलब्ध हैं तो उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में और हीमोग्लोबिन करेक्ट होकर नॉर्मलाइज ऑलमोस्ट हो जाता है। द बेनिफिट्स एरिथ्रोपोइटिन देने से पेशेंट को मालूम है कि एरिथ्रोपोइटिन जब उसको नहीं दिया जाता या वो बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जब वो फिर एरिथ्रोपोइटिन लेते हैं तो एनीमिया करेक्शन हो जाने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो की जरूरत तो रहती ही नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत परिवर्तन पेशेंट महसूस करता है और ऑलमोस्ट नॉर्मल पर्सन की तरह उसको महसूस होता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस, वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी भूख बढ़ जाती है। सेक्सुअल फंक्शन के ऊपर भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट
रहता है और कार्डियक फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है, स्पेशली एनीमिया है और पेशेंट को हार्ट डिसीज भी है, तो वो जो एंजाइना, छाती में दर्द होना इस्कीमिया से, खून की सप्लाई हार्ट के कोशिकाओं में कम हो जाने से, तो उसके सिम्टम्स भी यदि हीमोग्लोबिन करेक्ट रहता है, रेंज में रहता है, तो वो कार्डियक सिम्टम्स और एंजाइना भी ये प्रिवेंट करता है। दूसरी चीज ये है कि यदि हीमोग्लोबिन टारगेट रेंज में रहता है तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स इन पेशेंट्स के कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल erythropoietin is a revolutionary intervention which has made a sea change in the quality of life of these patients. हमको कई ये प्रश्न हमारे पास आता है कि हमको कितनी एरिथ्रोपोइटिन की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है, ही इज द बेस्ट पर्सन, वो डिसाइड करेगा आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आप एरिथ्रोपोइटिन को किस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं और किस तरह से आप एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन ले सकते हैं। एक जैसे मैंने बताया सबकुटेनियस होता है, जैसे हम इंसुलिन को लेते हैं, और दूसरा डायरेक्टली इंट्रावेनस हम दे सकते हैं, जो कि डायलिसिस के टाइम, जबकि डायलिसिस हमारा चल रहा होता है, उसको इंजेक्शन लगा सकता है। एरिथ्रोपोइटिन की डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग एरिथ्रोपोइटिन है और कुछ लॉन्ग एक्टिंग एरिथ्रोपोइटिन है। शुरुआत में जब एक्यूटली हम एनीमिया करेक्ट कर रहे हैं तो वीकली या ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार एरिथ्रोपोइटिन को, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, ज़्यादा फास्ट एक्ट करती है, और बाद में हम इन पेशेंट्स को लॉन्ग एक्टिंग एरिथ्रोपोइटिन, जो कि 1 in 3 weeks और 1 in 4 weeks, 3 या 4 हफ्ते में एक बार उसको दे सकते हैं। ये डॉक्टर्स आपसे कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा। एरिथ्रोपोइटिन इज अ यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल एंड रीजनेबली सेफ इंटरवेंशन, लेकिन जो कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं उस पर थोड़ा दर्द हो सकता है, क्योंकि एनीमिया करेक्ट होता है तो हीमोग्लोबिन की जो कंसिस्टेंसी बढ़ती है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है। यदि हम ज़्यादा इसको करेक्ट कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है और कई बार थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इसके साथ स्ट्रोक, यदि थ्रोम्बोसिस हमारा ब्रेन में हो जाए तो स्ट्रोक। तो ये ओवर करेक्शन हमें अवॉइड करना चाहिए। रिएक्शंस कई बार इंजेक्शन से होते हैं, हर जो बहुत कॉमन नहीं है। फीवर उस पार्ट का रिएक्शन का पार्ट है। nausea और dizziness, these are some of the unusual effects which can happen. जो एरिथ्रोपोइटिन की एक एस्पेक्ट कॉस्ट थी। जब एरिथ्रोपोइटिन शुरू में, जैसा मैंने बताया 86 में 89 में इसका यूज बहुत बढ़ा और शुरू में ये एक्सपेंसिव थी, लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन अवेलेबल हैं और दे हैव बिकम अफोर्डेबल आल्सो। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, पेशेंट्स को जो डायलिसिस का प्रोग्राम है, और दूसरा जो क्रॉनिक किडनी डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये many of these programs which are government sponsored, they cover the cost of erythropoietin, because it's a I will not say life saving, but it is a drug which really brings sea change in the quality of life. So it is all covered and it is also reimbursed under all these programs, and in many of the programs it is given free. जैसा मैंने बताया कि कई बार सबकुटेनियस
इंजेक्शन जो है वो कम्बरसम हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को बार बार सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो वो पेशेंट थोड़ा उसको कम्बरसम लगता है। और यदि पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसको इंट्रावेनस लगाया जा सकता है। इसके साथ में पेशेंट जिनको हार्ट डिसीज है स्पेशली, उनके अंदर हमारे टारगेट हीमोग्लोबिन एरिथ्रोपोइटिन के यूज के साथ बहुत ज्यादा नहीं रखे जाते, बिकॉज इट हैज बीन सीन कि यदि हम हार्ट डिसीज वाले पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन का यूज काफी हेल्पफुल है टू करेक्ट द हीमोग्लोबिन, लेकिन टू ओवर करेक्ट और ब्रिंग इट टू द नॉर्मल इज नॉट सेफ, बिकॉज उस सिचुएशन में देखा गया है कि इनको हार्ट डिसीज एग्रेवेट हो जाती है। तो ये सब हमको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हम इसको ओवर करेक्ट भी ना करें। दी एरिथ्रोपोइटिन नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, कई बार एरिथ्रोपोइटिन हम दे रहे हैं और हमारा हीमोग्लोबिन हम ले रहे हैं और हीमोग्लोबिन करेक्ट नहीं होता है, या बहुत ज्यादा डोज हम एरिथ्रोपोइटिन की ऑलमोस्ट मोर देन 450 यूनिट्स पर बॉडी पर केजी बॉडी वेट पर वीक, वो लेने के बाद भी 3 से 6 महीने में हीमोग्लोबिन हमारा रेंज में नहीं आता जो टारगेट है। इसमें हमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, जो कि हम सीआरपी टेस्ट से लगा सकते हैं, या हमारा ब्लड लॉस हो रहा हो कहीं से। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी का जिक्र किया गया था कि कई बार हमारे एल्युमिनियम लेवल्स, आजकल ये बहुत रेयर है क्योंकि वाटर क्वालिटी स्पेशली डायलिसिस की इम्प्रूव कर गई है। यदि हमें कुछ ऐसे रोग जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज जिनको बोलते हैं, उसमें भी डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट, B12 विटामिन डेफिशिएंसीज, मायलोमा जो कि एक बोन मैरो टेस्ट से पता लगता है, ये हड्डियों की बीमारी एक तरह से कैंसरस है। खून का टूटना, खून के जो ब्लड सेल्स का हेमोलिसिस, प्रोटीन की कमी होना, यदि हमारा डायलिसिस, यदि हम डायलिसिस पे हैं और डायलिसिस पूरा नहीं ले रहे हैं, या कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है और दूसरी दवाइयां भी हैं, वो आपके डॉक्टर उसको देखेंगे, वो भी एरिथ्रोपोइटिन की रिस्पांस को कम कर देते हैं। बहुत रेयर केसेस में एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम कहते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन रिलेटेड रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं, जिसको PRCA कहते हैं। ये बीमारी बहुत रेयर है और शुरू में पाई गई थी, इसके कारण देखे गए, लेकिन आजकल ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर ही हो गई है। यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन रेस्पॉन्सिवनेस का जिक्र किया गया है, और इसमें मेनली एरिथ्रोपोइटिन, though it is a very good intervention, reasonably safe, लेकिन it can have toxicity also if एरिथ्रोपोइटिन के कारण हमारा प्लेटलेट फंक्शन या बॉडी में जो ब्लड का विस्कोसिटी है, ब्लड की जो एक तरह से थिकनेस है, वो भी बढ़ सकती है, ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ सकती है, और ओवरऑल हार्ट वाले पेशेंट्स में हार्ट डिसीज को भी ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइड इफेक्ट है। तो एरिथ्रोपोइटिन का यूज करते हुए हमें ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर इन सबको देखेगा, लेकिन आपको भी यदि ऐसा कुछ लगे तो अपने डॉक्टर से आगे बढ़ के उसका डिस्कशन करें। मैं एक और एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट का जिक्र करना चाहूंगा। ये एक ओरल क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, जो कि जैसे एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्टेबल दी जाती है, लेकिन ये ड्रग्स जो हैं ये ओरल क्लास ऑफ ड्रग्स,
और इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे कि कुछ वैक्सीन्स इंडिया ने इन हाउस बनाई, इसी तरह से ये एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको डेसिडोस्टैट है, वो जाइडस कंपनी ने इन हाउस इंडियन मॉलिक्यूल इसको बनाया और ये अब उपलब्ध है। क्रोनिक किडनी डिसीज, किडनी की बीमारी जिसमें फंक्शन कम है, उसके एनीमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए ये एक नोवेल क्लास ऑफ ओरल ड्रग्स हैं, जो कि डायलिसिस और जो पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, दोनों में ये इफेक्टिव हैं और इनका यूज किया जाता है। ये इंडियन स्टडीज में desidostat की studies have proved, have shown that इनकी जो efficacy है oral drug desidostat, वो almost erythropoietin जो injectable है उससे head to head comparison में the efficacy is almost similar. In oral class of drugs का मेन इफेक्ट एक हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर जिसको उसको ये इनहिबिट करती है, और उससे इनहिबिट करने से हमारा शरीर खुद ही खुद और एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू कर देता है, और एक तरह से ये एंडोजीनियसली मेड एरिथ्रोपोइटिन को बढ़ाता है। जबकि एरिथ्रोपोइटिन जब कमी हो जाती है तो हम उसको बाहर से इंजेक्शन की तरह देते हैं। इसके साथ ये आयरन का जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर में आयरन की जो मात्रा है, कहाँ पे कितना होना चाहिए एप्रोप्रिएटली, उसको भी एक तरह से ऑप्टिमाइज करता है, इम्प्रूव करता है। ये उन पेशेंट्स में भी इफेक्टिव देखा गया है जिनमें एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस जो हम यूज करते हैं उसकी रिस्पॉन्स यदि पूरी ना आ रही हो। ये एक इसका और बेनिफिट है ये ओरल डेसिडोस्टैट का, कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में मैंने जैसे जिक्र किया क्रॉनिक किडनी डिसीज इज एन इन्फ्लेमेटरी स्टेट, उसमें हेप्सिडिन एक मॉलिक्यूल है जिससे ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ जाता है, तो ये हेप्सिडिन को भी कम करता है, तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और इट कैन बी गिवन ओरली। तो ये एक इस कार्टून में आप एक समरी आप देख रहे हैं कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, और ये ओरल ड्रग्स जो जिसका मैंने जिक्र किया ये हमारा एंडोजीनियसली एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। किडनी फंक्शन या खराब होने के बावजूद ये हमारे लिवर भी एरिथ्रोपोइटिन को बना सकता है, और जो इसके साथ में इसके और बेनिफिट भी हैं। एक दो बेनिफिट मैं जस्ट मेंशन करूंगा, वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। यूज ऑफ दीज ओरल डेसिडोस्टैट, और आयरन यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, क्योंकि हमारे जो आंतों से और ड्यूडिनम से और अंदर बॉडी में जो स्टोर्ड आयरन होता है, जिसको कि आयरन ओवरलोड कह सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और जैसा मैंने जिक्र किया डेसिडोस्टैट जो है वो जिस तरह से जो कोविड की वैक्सीन्स इंडिया में बनी, उसी तरह से ये एक मॉलिक्यूल है जो कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के एनीमिया ट्रीटमेंट के लिए है, जो कि मेक इन इंडिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मेक इन इंडिया स्लोगन है, उसका इसको एक पार्ट कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो कि ओरल ऑल्टरनेटिव टू इंजेक्टेबल एरिथ्रोपोइटिन है, वो इंडिया मेक इन इंडिया करके इसको स्टडीज में इक्वली इफेक्टिव प्रूव हो गई हैं। और हमारी जो ड्रग रेगुलेटर एजेंसी है DCGI,
उसने भी इसको अप्रूवल दिया है और अब इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कई पेशेंट्स जो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं और कई पेशेंट जिसमें रिस्पांस नहीं आ रही है, जिसमें इन्फ्लेमेशन है, जिसमें आयरन ओवरलोड है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। So I think we can take other comments and any questions and inputs. थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। आई एम श्योर जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आज फेसबुक पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, सबको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी, क्योंकि बोथ डॉक्टर श्याम एंड डॉक्टर शर्मा, आप लोगों की जो प्रेजेंटेशंस थी वो एक पावर हाउस था इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग एनीमिया एंड सीकेडी, एंड आई एम श्योर सबको इसमें काफी हेल्प मिली है। मैं क्विकली एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जो लोगों ने हमारे भेजे हैं, और वैसे तो काफी लोग अपने अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछना चाह रहे हैं, बट क्योंकि हमारे पास आज टाइम की कमी है तो हम क्विकली एक एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक मोस्ट कॉमन जो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट कई लोगों का या तो हीमोग्लोबिन कम ही रहता है, 9 या 10 के पास रहता है, वो इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी वो उतना नहीं बढ़ पा रहा। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ एक क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है, जैसे कि 17 या 16 इस तरीके से रहता है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन इसका आंसर कर सकते हैं कि इन केसेस में व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन रेंज से ज्यादा है, तो उस केस में क्या सॉल्यूशंस है और ये क्यों होती है कंडीशंस? मैं जो हीमोग्लोबिन कम ट्रांसप्लांट रहता है, ट्रांसप्लांट के बाद उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर बंसल दूसरा पार्ट लेंगे। जनरली ट्रांसप्लांट के बाद हीमोग्लोबिन गेट्स करेक्टेड। उसका रीजन ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी को करेक्ट कर देती है। लेकिन यदि शुरुआत में जबकि किडनी हमारी ट्रांसप्लांटेड किडनी का फंक्शन आ जाता है, तो कई बार हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन 8 और 9 से धीरे धीरे करेक्ट होता है। इट में टेक सम टाइम। यदि वो करेक्ट नहीं हो रहा है तो शुरू में आप आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ डेफिशिएंसीज है या नहीं है, उसका टेस्ट हमें करना चाहिए। कई बार आयरन डेफिशिएंसी यदि देखी नहीं गई या मिस हो गई है, उसको हम करेक्ट करते हैं। और साथ में शुरू में 1-2 हफ्ता यदि जरूरत हो तो इनको एरिथ्रोपोइटिन भी दी जा सकती है। But as soon as hemoglobin gets up to 11, they would not need erythropoietin. कई बार इनको दूसरे कारणों से भी कमी होती है, जैसे यदि उनका पीटीएच पैराथार्मोन एक हार्मोन है जो कि पेशेंट्स डायलिसिस पे बढ़ा रहता है, तो यदि वो बढ़ा हुआ हो तो उसमें जो शरीर में एरिथ्रोपोइटिन नॉर्मलाइज भी हुई है किडनी लगाने के बाद, वो पूरी एक्टिव उसका हो नहीं पाती है। तो यदि उसका है तो हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए दवाई देनी पड़ेगी कि वो चीजें करेक्ट हों। B12 डेफिशिएंसी कई बार जो ट्रांसप्लांटेड किडनी और पेशेंट के अंदर वो हेमेटोलॉजिस्ट और आपका डॉक्टर दिखेगा, उसमें इनकम्पैटिबिलिटी थोड़ी होती है। उसके कारण भी खून के कण जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हेमोलिसिस हो जाता है। इसके बाद यदि किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, कई बार एक स्टेज के बाद रिजेक्शन हो गया या किडनी फंक्शन ऑप्टिमम नहीं है, तो डॉक्टर ये सब चीजें देखकर इनको करेक्ट करेगा। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स आफ्टर ट्रांसप्लांट दे डोंट नीड एनी एरिथ्रोपोइटिन, बट दे शुड बी getting treatment to correct deficiency and other disturbances if they are there. Blood group incompatibility of type which is not the normal ABO incompatibility can sometimes produce hemolysis and deficiency. I think Dr. Bansal can take the other part when the hemoglobin in some of these patients goes very high, 17, 18. So how it should be managed. Dr. Bansal, please. यस सर, थैंक यू सर। सो जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कुछ पेशेंट्स को
ट्रांसप्लांट के बाद में हीमोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसको कि हम पोस्ट ट्रांसप्लांट इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। और यूजली ये वो हम इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर हीमोग्लोबिन 17 से ज़्यादा है या हीमेटोक्रिट 50% से ज़्यादा है तो उसको पोस्ट ट्रांसप्लांट इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। तो कई बार ट्रांसप्लांट के बाद में बिकॉज स्टिल कई बार इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शंस वगैरह एकदम से ज़्यादा होता है, आयरन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है और बॉडी एकदम से किडनी का फंक्शन जब नॉर्मलाइज हो जाती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। कई बार हम कोई ऑब्वियस कॉज नहीं होता है उस चीज़ का, और अगर हीमोग्लोबिन 17 से ज़्यादा बढ़ता है तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि कुछ एसी इनहिबिटर या एआरबीज जो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए यूज़ करती हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन का थोड़ा कम हो जाए बनना। और कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, डरीफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन, और इनको देने से ये थोड़ा कम हो जाता है। कई बार अगर ये बार बार होता रहता है और हीमोग्लोबिन अगर 18 से ज़्यादा बनने लगता है, पहुंच जाता है, तो कई बार को ब्लड को निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रिट होगा तो उससे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमको करना पड़ता है कई बार। राइट। तो मतलब आप जो भी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, बट एवरी कंडीशन इज यूनिक, और वो जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपको एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो दो गेस्ट्स हैं स्पेशल आज, उन्होंने जो भी बेसिक्स हैं हमारे वो सारे क्लियर किए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू बोथ द डॉक्टर्स फॉर गिविंग अस देयर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टुडे, एंड अ बिग थैंक यू टू आवर पार्टनर्स ऑल्सो which is Zydus Life Sciences। अभी लेटेस्ट इनोवेशंस जो आ रही हैं अनीमिया के लिए, उसमें जाइडस का भी एक बड़ा रोल है, और जब तक ये इनोवेशंस आती रहेंगी और हमारे पास डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर श्याम बंसल जैसे डॉक्टर्स रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल पाएगा एंड एवरीबॉडी विल इम्प्रूव। So thank you so much, doctors, for coming today, taking out time. And again, a very happy Independence Day to you. Happy Independence Day to everyone who is listening to us today. मैं सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले पाया, कुछ लोगों ने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी लिखे हैं, बट जरूर हम नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया और हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. Bye bye.